اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزیزان محترم، ماہ رحمت و مغفرت و برکت اپنی آخری سیڑھی کے اوپر ہے۔ آج 29 ماہ مبارک رمضان ہو گئی۔ اگر چاند ہو گیا تو جو رات ہے آج کی وہ رات شب عید ہوگی، شب عید فطر۔ کل کا دن اول شوال عید الفطر ہے۔ اگر چاند ہو جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کر دوں، اور اگر خداوند عالم نے ہم لوگوں کو موقع دیا ایک دن اور بندگی کا، چاند نہیں ہوتا ہے، پھر ایک دن اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ ماہ مبارک رمضان ناظرین کرام، سامعین کرام، ختم ہو گیا۔ یہ ہم لوگ خوش ہیں کہ ایک مہینے کی بندگی ہم نے انجام دی۔ خوش ہونا بھی چاہیے، پروردگار عالم کی اطاعت میں ہم نے یہ وقت گزارا۔ لیکن اہل بیت اطہار ان راتوں میں جو یہ 10 راتیں گزری ہیں، بہت بے چین بے قرار۔ آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کہیں کسی مہمانی پہ کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں اور وہاں آپ کو اچھا لگتا ہے، یعنی من پسند جگہ آپ مہمان ہوتے ہیں، میزبان آپ کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، بہت احترام کرتا ہے، آپ کا آنے کا دل کرتا ہے وہاں سے۔ آپ ہوں یا بچے ہوں، سب چاہتے ہیں کہ ایک دن اور رک جائیں، 2 دن اور رک جائیں، 3 دن اور رک جائیں، کاش یہیں رکے رہتے۔ اہل بیت اطہار کا بھی یہی حال ہے کہ پروردگار دن ختم ہو گیا تیری عبادت کا دن کا مطلب یہ کہ تیری میزبانی کے دن ختم ہو رہے ہیں، ہماری مہمانی کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ رمضان تو پھر آئے گا ہی آئے گا، اگلے سال بھی، لیکن معلوم نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا وہ چیز جو بیان کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرنا، مسافر مہمان جب آپ کے یہاں کوئی آتا ہے تو آپ جب جانے لگتا ہے تو آپ اس کو خدا حافظ کرتے ہیں۔ اگر یہ مہمان بہت عزیز ہے آپ کو تو آپ اس کو جاتے ہیں بدرخواہ کرنے، دور تک پہنچانے جاتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن تک، دروازے تک، بعض موقع گلی اور کوچے تک۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گاڑی پر سوار کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں جب تک وہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے مہمان سے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں کہ آ جاتے ہیں تو ناک بھون چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے، جتنی جلدی ہو سکے جائیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی صورت سے رخصت کریں۔ خدا نہ کرے کہ ہم لوگ اس طرح کے مہمان رہے ہوں پروردگار عالم کے۔ پروردگار عالم موقع دے رہا ہے ہمیں۔ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہی بتاؤں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مستحب ہے کہ 6 دن انسان روزہ رہے۔ یہ 6 دن مستحب ہے روزہ رہے، اور اس کے بڑے فائدے اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد نیکسٹ ڈے تو عید ہوگی، عید کے دن تو جائز نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن 2 شوال سے لے کر کے 7 شوال تک، 8 شوال تک یہ 6 دن روزے رکھے۔ تو اپنے روزے کو ماہ مبارک رمضان کے روزے سے ملا دیں۔ ادھر ایک مہینے کے روزہ یہ جو ہے یہ 30 دن کا روزہ تو ادھر ہے ہی ہمارا۔ پروردگار عالم ایک نیکی کے بدلے، ایک حسنہ کے بدلے، ایک اچھے کام کے بدلے ہم کو 10 برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ علماء نے بیان کیا ہے۔ 30 دن کا تو 300 ایسے ہی ہو گیا۔ 30 دن ہم نے روزہ رکھا، عبادت کیا، نیک عمل انجام دیا، تو ہمیں 300% تو ہم کو مل گئے۔ اب بچتے ہیں ہمارے پاس 60۔ تو 6 دن جو کہا گیا ہے وہ 6 دن روزہ رکھیے، ہر روزے کے بدلے 10 روزے کا ثواب ملے گا، 360 دن۔ ہجری سال جو ہوتا ہے چاند والا، یہ 360 دن کا ہوتا ہے، اگر سارے مہینے 30 کے مان لیے جائیں تو اس اعتبار سے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس اپارچونٹی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھیے، میں بتا رہا ہوں۔ خیر، ماہ مبارک رمضان ہے، اس کو وداع کرنا ہے۔ کیسے وداع کیا جائے؟ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جناب جابر پہنچتے ہیں، اور دیکھیے یہ ادب ہے، احترام ہے، چونکہ گفتگو اخلاقیات کے اوپر ہو رہی تھی، تو اخلاقیات میں اس چیز کا ادب اور آداب، ان چیزوں کا رعایت کرنے پڑتی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اب رخصت ہو رہا ہے تو ہم اس کو رخصت کریں، خدا حافظ کریں۔
पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी आते हैं। पैगम्बर इस्लाम, अच्छा ये दिन जो था जिस दिन जाबिर नकल करते हैं इस रवायत को, कहते हैं कि माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा था। अब रवायत में ये नहीं लिखा है कि उस दिन आखिरी दिन जुमे का दिन था या जुमतुल विदा था, ये नहीं, लेकिन आखिरी जुमा, माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा। पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाजिर होते हैं तो पैगम्बर इस्लाम ने जनाब जाबिर से पूछा कि जाबिर, माह मुबारक रमज़ान को तुम किस तरह से विदा कर रहे हो? तो मैंने कहा कैसे खुदाफिज करूंगा, मुझे तो नहीं मालूम है, मगर माह मुबारक रमज़ान को भी खुदाफिज किया जाता है, मुझे नहीं मालूम है या रसूलल्लाह, कैसे मैं खुदाफिजी करूं माह मुबारक रमज़ान की, क्या कहूं, क्या कह के खुदाफिजी करूं? पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, जाबिर मैं तुमको सिखाता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ, जो अल्फाज मैं अपनी ज़बान पे जारी कर रहा हूँ तुम भी उन्हीं अल्फाज को अपनी ज़बान पर जारी करना। फिर पैगम्बर इस्लाम फरमाते कहते हैं, जाबिर कहो, अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहद मिन सियामिना इय्याह, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, इस माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रोज़ा करार न दे। ला तजअलहु आखिरल अहद, हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह मुबारक रमज़ान आखिरी रोज़ा करार न दे। देखिए, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। माह मुबारक, मैंने अर्ज़ किया, माह मुबारक रमज़ान फिर आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम लोग जिंदा रहें। जो जिंदा रहेगा वो दर्क करेगा, जो जिंदा नहीं रहेगा उसके लिए माह मुबारक रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा। मौत बरहक है, सबको आनी है, लिहाजा उसके लिए आमादा होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए हमें। फिर पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि कहो जाबिर, फ़इन जअलतहु फजअलनी मरहूमन वला तजअलनी महरूमा, जाबिर कहो कि मेरे अल्लाह, अगर तूने इसी चीज़ में मेरी सलाह रखी है, इसी चीज़ में मेरी बेहतरी रखी है कि मैं इस दुनिया से जाऊं, चला जाऊं, तो मेरे मालिक, और ये मुझे तौफीक दोबारा माह मुबारक रमज़ान को दर्क करने की ना हो, तो मेरे मालिक बस तुझसे यही दुआ है, यही इल्तिमास है तेरी बारगाह में कि हमें अपनी रहमत के साए में इस दुनिया से रुखसत कर, यानी अपनी रहमत और बख्शिश के साए में हमें इस दुनिया से तू रुखसत कर, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो पाक साफ जाएं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई गुनाह ना हो। फिर पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, वला तजअलनी महरूमन, अल्लाह हमको मरहूम बना, मेरे ऊपर रहमत कर, यानी लेकिन महरूम न कर। ये बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर गौर कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो पिछले साल माह मुबारक रमज़ान में थे, उन्होंने रोजा रखा, इस साल भी खुदा ने उन्हें हयात दी, मौजूद है, लेकिन किसी मुश्किलात की वजह से तौफीक नहीं हासिल हो पाई, खुदा न खास्ता बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, जाने कोई दूसरा मरज लायक हो गया, कोई दूसरी मुश्किलात परेशानी आ गई, जिस वजह से तौफीक नहीं हो पाई, महरूम हो गए वो रोजा रखने से। तो हमें महरूमों में करार न दे अल्लाह, मरहूमों में करार दे, मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी रहमत और बख्शिश के साथ। फिर पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जाबिर, फ़इन्नहु मन क़ाल ज़ालिक, जिसने इन अल्फाज के साथ माह मुबारक रमज़ान को विदा कहा, ज़फ़रा बेअहदल हुस्नयैन, खुदावंद आलम इन दो नेकियों में से एक नेकी उसको जरूर अता करेगा। इम्मा बेबुलूग़ शहर रमज़ान मिन क़ाबिलिन व इम्मा बेग़ुफ़रानिल्लाहि व रहमतिही, या आने वाला माह मुबारक रमज़ान वो दर्क करेगा फिर से, ये नेमत है परवरदिगार आलम की, या अगर उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, परवरदिगार आलम ने यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया है, अगला माह मुबारक रमज़ान उसको नसीब नहीं होना है, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में चूंकि वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह हमको अपनी रहमत और बख्शिश के साए में इस दुनिया से लेकर के जा, रुखसत कर यहाँ से, इस दुनिया से, तो ये भी उसके लिए एक नेमत है, वो पाक और साफ बगैर आलूदा हुए वो पहुंचेगा परवरदिगार आलम की बारगाह में। ये है वो तरीका जो पैगम्बर इस्लाम ने माह मुबारक रमज़ान को विदा के लिए हमें आपको तालीम दिया है। जब हम सीरत में देखते हैं अइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में, तो वहां भी हम देखते हैं इमाम सज्जाद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप देखिए तरीका उनका क्या था, गुलामों कनीजों को मशहूर है, आपने सुना है कि बहुत ज्यादा तरबियत करते थे गुलामों कनीजों की, वो खरीद करके उनकी तरबियत करते थे।
अव्वल माह मुबारक रमज़ान से, शब अव्वल माह मुबारक रमज़ान से इमाम अलैहिस्सलाम एक कॉपी बनाते थे, एक डायरी कह लीजिए, एक रजिस्टर कह लीजिए, उसके ऊपर तमाम गुलामों कनीज़ों का नाम लिखते थे। हर रोज उनकी क्या गलती थी, क्या खता थी, उसको उस रजिस्टर के ऊपर, उस कॉपी पे लिखा करते थे। आज फला कनीज ने मेरा फला कहना नहीं सुना, फला गुलाम ने फला गलती किया, फला ने ये किया, फला ने सबकी सारी चीजें। लेकिन जब ईद उल फित्र की शब ईद उल फित्र आती थी, चांद रात आती थी, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तमाम कनीज़ों और गुलामों को इकट्ठा करते थे, बुला करके कहते थे कि ये देखो ये रजिस्टर है, इसमें मैंने तुम लोगों की ये गलतियां लिखी हैं, तुमने ये काम अंजाम दिया, ये गलतियां किया, ये गलतियां किया, सबकी गलतियां उनको बताते थे। फिर उसके बाद कहते थे कि अच्छा ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये गुलाम और कनीज इमाम के घर में किसी नौकर की हैसियत से नहीं रहते थे। आप में से वो हजरात जो मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं, उन्होंने हरम में खुद्दाम देखे होंगे, खादिमीन देखे होंगे। ये खादिमीन तकरीबन 90% जो है वो आउट ऑफ पेड है। इनको किसी तरह का कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, या किसी तनख्वाह के लिए ये वहां नहीं आते हैं, बल्कि ये खिदमत के लिए आते हैं, अपने लिए शरफ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो ये इमाम की खिदमत में यूं ही पहुंचते पड़े रहते थे, जाते ही नहीं थे इमाम की बारगाह से, कहते थे नहीं मौला हम नहीं जाएंगे यहाँ से, आपके पास से। तो इसी तरह के अफराद थे गुलाम और कनीज, इमाम के पास रहते थे, तरबियत होती थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम सबको इकट्ठा किया इमाम ने, फिर कहा कि हमने तुम तमाम लोगों की गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को, लग़ज़िशों को माफ कर दिया है। अब तुम लोग सब मिल करके हमारे लिए एक काम करो। इमाम फरमाते थे वरफ़उ अस्वातकुम, बावाज़ बुलंद, अपनी आवाजों को बुलंद करके, हाथों को उठा के, वरफ़उ अस्वातकुम, बावाज़ बुलंद हमारे लिए दुआ करो, फरियाद करो परवरदिगार आलम की बारगाह में। किस जुमले के साथ? अल्लाहुम्मा अफ़ु अन अली इब्नुल हुसैन, अल्लाहु अकबर, कि परवरदिगारा अली इब्नुल हुसैन को माफ कर दे। कौन कह रहा है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अपने लिए गुलामों से कह रहे हैं, कनीजों से कह रहे हैं कि हमारे लिए इस तरह से परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करो। कमा अफा अन्ना, जिस तरह से अली इब्नुल हुसैन ने हमें माफ किया, अल्लाह तू भी इसी तरह से अली इब्नुल हुसैन को माफ कर दे, उसकी खताओं को बख्श दे। फ़अतिक़हु मिनन नार, अली इब्नुल हुसैन को आतिश जहन्नम से माफ कर दे, रिहाई दे दे, जिस तरह से अली इब्नुल हुसैन ने हमें आजाद किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ये जुमलात बयान कर रहे हैं, इमाम की आंखों से अश्क जारी हैं, इमाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये दर्स है हमारे लिए, ये हमारे लिए इबरत की जगह है। फिर गुलामों कनीजों ने हाथों को उठाया, इन्हीं अल्फाज के साथ दुआएं की। अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब ईद का दिन आता है तो सुबह में जाते हैं, तमाम गुलामों कनीजों के लिए हदिये और तोहफे खरीदते हैं, सबको देते हैं और रुखसत करते हैं अपने यहाँ से। ये तरीका माफ करना, बख्शना एक दूसरे को, उनकी खताओं से चश्म पोशी, ये माह मुबारक रमजान में अब तक अगर हमने नहीं किया है तो सीरत के ऊपर अमल करते हुए, मासूम की सीरत के ऊपर अमल करते हुए, हम एक दूसरे की खताओं को कम से कम, आज की जो रात आएगी, हमारा ईद का दिन आ रहा है, इसके पहले पहले हम एक दूसरे की गुनाहों को, गलतियों को, खताओं को माफ करें। अगर मनमुटाव है, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ है हमारे अंदर है, तो हम उन इख्तिलाफ को एक दूसरे से दूर करें। शबे ईद है ना, अगर आज चांद हो गया तो शबे ईद है। आसमान से फरिश्ते, अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मलाइका आसमान शबे ईद फित्र, माह मुबारक रमजान की आखिरी रात जो होती है, उसमें वो आसमान से फरिश्ते निदा देते हैं। कौन सी निदा? कहते हैं कि मुबारक हो तुम लोगों को, खुदावंद आलम ने तुम तमाम लोगों को माफ कर दिया है, बख्श दिया है। फिर उसके बाद से कहते हैं कि ये फरिश्ते खिताब करके कहते हैं कैफ़ तकूनून फीमा तस्तानिफून, अब ये तुम्हारे ऊपर देखते हैं कि तुम आइंदा अब जो जिंदगी शुरू करने वाले हो कल से, अब ये तुम कैसे शुरू करते हो। हमें बहुत मोहतात रहना है, बहुत एहतियात करनी है। अगर हमने इस महीने में अपने आप को पाबंद किया है, नमाज का, रोजे का, इबादत का, कुरान का, अच्छाइयों का, बुराइयों से दूर रहने का पाबंद किया है, तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को एक्सटेंड करें, यहीं पे फुल स्टॉप न लगा दें ईद के दिन कि नहीं अब खत्म, दफ्तर बंद हो गया, फिर अगले साल नहीं। अगर ये अच्छाइयां जो हमने सीखी, इन्हें हम अगले आने वाले माह मुबारक रमजान तक एक्सटेंड करें, मिलाएं ले जा करके कि परवरदिगारा तेरी बारगाह से हमने अच्छाइयां सीखी हैं, हम फिर तेरी बारगाह में इंशाअल्लाह अगले साल हाजिर होंगे तो अच्छाइयों के साथ हाजिर हों। परवरदिगार आलम की रहमत बहुत वसी है, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। आज जो दुआ पढ़ी जाती है, हर रोज की अलग अलग दुआ है ना, उसका पहला जुमला क्या था? अल्लाहुम्मा गश्शिनी फीह मिनर रहमा,
पूरी दुआ है, छोटी सी दुआ है। गशनी फीह मिन अर्रहमा वर्ज़ुक़नी फीह तौफ़ीक़ वल इस्मा वतहिर क़ल्बी मिन इनायात तुहमा। इसमें दो वर्ड हैं, एक आखिर में तोहमत है और सबसे पहले जुमले के अंदर रहमत है। गशनी फीह मिन अर्रहमा, यह गशनी क्या चीज है? गशनी का मतलब बहुत सादा सा तर्जुमा करूं तो ओढ़ा देना। कोई चीज हो उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दीजिए, यूं सर से पैर तक छुपा देना। हमारी दुआ में क्या है आज की दुआ में? कि अल्लाह हमारे ऊपर अपनी रहमत की चादर ओढ़ा दे, सर से पैर तक हमें अपनी रहमत में समेट ले। ये रहमत वासिया बहुत बड़ी चीज है। एक शख्स था, पैगंबर इस्लाम मौजूद थे, पैगंबर इस्लाम के सामने दुआ करने लगा। देखिए यहीं पे कह दूं इस वाक़े के पहले कि हमें तोहमत से बचना है, परवरदिगार आलम की रहमत से मायूस नहीं होना है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तोहमत सबसे बड़ा गुनाह है इस वक्त, जिसके लिए हम जर्रा बराबर फिक्र नहीं करते हैं। एक शख्स था पैगंबर रहमत के सिलसिले में, पैगंबर इस्लाम के सामने एक पास में एक शख्स मौजूद था। उसने हाथों को उठाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया कि या अल्लाह हमें और पैगंबर इस्लाम को जन्नत नसीब फरमा, बाकी किसी को जन्नत में न भेज। एकदम ये मैं आपको ऐन ही जुमले बता रहा हूं, अल्फाज मेरे जरूर है, लेकिन ये मफहूम और सेंटेंस वहीं के रिवायत के। जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने सुना, उसकी तरफ मुड़ करके देखा, ये क्या कह रहे हो तुम? जिस चीज को खुदा ने वसी और गुस्तरदा और बहुत वसी बना रखा है, तुम चाहते हो खुदा आलम उसे तुम्हारे कहने के ऊपर बहुत छोटा और महदूद कर दे? परवरदिगार आलम अपनी उसकी रहमत वासिया है, वसी है, तुम उससे चाहते हो कि खुदा अपनी रहमत को मुख्तसर कर दे, छोटी सी कर दे, बहुत महदूद कर दे। जन्नत के अंदर सिर्फ हम जाएं और तुम जाओ, बाकी सब लोग कहां जाएंगे? बाकी दूसरों का हक नहीं है जन्नत में जाने का? ये कौन सी बात है? ये कौन सा दुआ करने का तरीका है? इंसान वो इंसान बेहतरीन इंसान है जो अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहे। इंसान वो इंसान अच्छा है जो दूसरों के सिलसिले में फिक्र करे। ये माह मुबारक रमजान हमें इन्हीं चीजों की तालीम देता है। हमने कोशिश ये किया है कि हम अपने आप को इस महीने में सुधारें। अगर कल ईद उल फित्र है तो ये हमारा आखिरी जलसा है, अगर नहीं है तो फिर एक दिन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आखिर में जल्दी जल्दी ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि फिक़ही मसला में बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कहूंगा कि फितरा हर इंसान के ऊपर वाजिब है। वो इंसान जो फकीर नहीं है, मिस्कीन नहीं है, इसके अलावा तमाम लोगों के ऊपर फितरा वाजिब है। फितरा सब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वो चीज जिसकी तरफ इशारा करना है वो ये है कि फितरा जब निकालते हैं तो जो तवज्जो वाली बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे गौर से सुनिएगा। फितरे को मुस्तहक तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं फैयाज मोहसिन फितरा निकाल रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुस्तहक तक मैं पहुंचाऊं। मैं किसी इदारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये फितरा इसलिए होता है कि गरीब इंसान ईद उल फित्र की खुशी अपने आल औलाद बाल बच्चों के साथ अपने घर में मनाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम खुशी मनाएं और दूसरा जो है वो नदारी की बुनियाद के ऊपर अपने आल औलाद बीवी बच्चों से शर्मिंदा हो। अगर फिक़ही मसला यह है, फतवे के मुताबिक यह है कि अगर मुस्तहक तक हमारा फितरा नहीं पहुंचा है, हमने जितना भी निकाला फितरा, हमारा अगर फितरा मुस्तहक तक नहीं पहुंचा है तो गोया हमारा फितरा हमने अदा नहीं किया, वो हमारे ऊपर कर्ज है। फिर ये हो गई बात फितरे की। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं कि हम तमाम लोगों की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, गुनाहों को माफ फरमाए। अगर अभी भी उसने अपनी नजर रहमत, नजर लुत्फ हम पर नहीं डाली है तो अपनी नजर रहमत और लुत्फ हम लोगों के ऊपर डाले। बीमारी, मुसीबत, वबा जो फैली हुई, इससे सबको महफूज रखे। जालिम हुकूमत के शर से दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान हो, मोमिनीन हो, सबको महफूज रखे। परवरदिगार आलम हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम तमाम लोग उनके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। गुफ्तगू के सिलसिले में कोई भी बात हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन।